newspaper reading session. Whenever न्यूज़पेपर रीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब कोई आप हेडिंग पढ़े तो थोड़ा तेज आवाज में बोले और इसके बाद आपका कंटेक्स्ट होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ऑफ होप एंड विजिलेंस announcement that the COVID-19 pandemic is no longer a global health emergency. What is the meaning of vigilance? नोट करिए, VIGILANCE, vigilance. विजिलेंस नाउन है और इसका एडजेक्टिव होता है विजिलेंट, VIGILANT, विजिलेंट। कमाल से, विजिलेंट, विजिलेंस, विजिलेंटली। तो आपको एक एक वर्ड की अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए। दिस इज विजिलेंट एंड दिस इज विजिलेंस एंड दिस इज विजिलेंटली। ये तीनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। इसका मीनिंग पता है आपको? बिल्कुल सही कहा आपने। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क होना, मतलब इसका मीनिंग हिंदी में है सतर्क। एंड विजिलेंस ये नाउन है, इसका मतलब है सतर्कता, सतर्कता। थोड़ा हिंदी शुद्ध ज्यादा हो गया। और ये एडवर्ब है और इसका मतलब है सतर्कता से। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हो कि जब आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे, अभी हेडिंग ही पढ़ी और एक वर्ड जानने को मिल गया, बेनिफिट हुआ कि नहीं? सो डेली आप अपने रूटीन में न्यूज़पेपर रीडिंग को लाएं और उसे रीड करें। जैसे आपने कहा मैं सतर्क हूं, बोलो आई एम विजिलेंट। मेरे अंदर सतर्कता है, आई हैव विजिलेंस। मैं सतर्कता से काम करता हूं, हाँ, आई वर्क विजिलेंटली। आई वर्क विजिलेंटली, यस। Okay, is that clear? Come on, say clear. Vigilant. Hello, vigilant. Vigilance. Vigilantly. Of hope and vigilance. Announcement that the COVID-19 pandemic is no longer a global health emergency. Of hope and vigilance. Announcement that the COVID-19 pandemic is no longer a global health emergency. That's a great news. The World Health Organization's announcement gives hope, but there is a message of caution. The world's lived experience with pandemics has confirmed with the certitude. ये तो पढ़ाया है, certitude. Come on, say certitude. Certain plus attitude. सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चितता, सर्टिनिटी। सर्टिट्यूड का मतलब है निश्चितता, सर्टिनिटी। तो सर्टिट्यूड को याद करना बहुत आसान है। सर्टिट्यूड में सर्टी आ रहा है, बोलो सर्टी, सर्टिफिकेट, सर्टिट्यूड देता है कि तुमने कोर्स पूरा किया है।
A certificate gives us certitude. Gives us certitude that you have completed the course. अब देखिए, पढ़ने का ढंग जरा समझिए, कहां पे यही तरीका आपको फॉलो करना चाहिए अपने बोलने में। कहां पे फुल स्टॉप लगा है, कहां पे कॉमा लगा है, इसका ध्यान रख करके तेज आवाज में पढ़ें। एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें। The world's lived experience with pandemics has conferred it with the certitude that epidemics wane to die down or transform into seasonal outbreaks. COVID-19 is no exception. The World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus last week declared, on the basis of advice from the Emergency Committee comprising independent experts, that the COVID-19 pandemic was no longer a public health emergency of international concern. After over 3 years, he was reading down an emergency that he first announced on January 30th, 2020, forced by a rapidly spreading infection that moved from China to 20 other nations across the world. Dr. Tedros notably invoked hope when he declared that COVID-19 was over as global health emergency, but followed it up with a rider. It did not mean COVID-19 was no longer a global health threat. Over the months leading up to the announcements, various experts with WHO were laying the ground, urging that it was time to treat COVID quite like seasonal influenza, for a world fatigued by great loss, human and otherwise, caused by the COVID pandemic, and exhaustively on guard. The DG's announcement brought a collective sigh of relief. आपने देखा, जहां पे फुल स्टॉप आ रहा था वहां पे वो रुक रहा था, कॉमा जहां आ रहा था वहां पे सांस ले रहे थे। ये आपका तरीका होना चाहिए रीडिंग करने का। और इंपॉर्टेंट है कि आपका मूवेबल आई हो। कैसा आई हो? लाइन पे मूव करता रहे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग अपने रूटीन का पार्ट बनाए, राइट। इट इज वेरी नॉलेजेबल एंड इट मेक्स यू अवेयर कि दुनिया में क्या चल रहा है। साथ ही साथ आपको स्टैंडर्डाइजेशन मिलता है। कौन से? स्टैंडर्डाइजेशन। और ये स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड चीजों से मिलेगा। स्टैंडर्ड चीजें कौन? जैसे डीडी न्यूज चैनल के एक्सपर्ट्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये सब आपको स्टैंडर्डाइजेशन देता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे शब्द मिल गए। लिखो कन्फर, ये आपको आज पता लगाना है इनका मीनिंग क्या है। CONFER, कन्फर, CONFER, कन्फर। एंड सर्टिट्यूड लिखिए। सर्टिट्यूड के बाद वेन, देन देयर इज अ वर्ड एक्सेप्शन, तो सभी को पता होगा। एंड बाकी तो इजी वर्ड्स हैं। कंसर्न तो पता ही होगा, चिंता। आफ्टर दिस रैपिडली, तेजी से। एंड नोटेबली, नोटेबली माने जिसे नोट किया जा सके, मतलब जो अपना छाप छोड़ता रहे। एंड आफ्टर दिस इन्वोक, ठीक है। इन्वोक तो इजी है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। बताइए इन्वोक का मतलब। इन्वोक का मतलब है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, आपने किसी चीज को लाना। जैसे मैंने आपके अंदर इंग्लिश में बात करने की स्पिरिट क्या की? इन्वोक की, पैदा की। तो उसने आशा पैदा की, इन्वोक्ड होप। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हैं,
वेरियस तो पता ही होगा, विभिन्न, इन्फ्लुएंजा, प्रभाव, कुछ संक्रामक बीमारियां होती हैं उसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं। आप बारिश में भीग गए, आपको जुकाम हो गया, इट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा। कौन से इन्फ्लुएंजा? फटीग। फटीग का मतलब है थक के चूर हो जाना, बहुत ही ज्यादा लॉस होना, थक जाना, लॉस ऑफ एनर्जी। बोलो फटीग। तो फटीग का मतलब है बिल्कुल थक के चूर हो जाना। एग्जॉस्टिवली, एग्जॉस्ट तो आप समझते ही होंगे, टायरिंग। जैसे एग्जॉस्ट लगा रहता है पंखा बड़ा, तो वो काफी ज्यादा हवा को बाहर फेंकता है। कौन से? एग्जॉस्ट। साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ का मतलब चैन भरी सांस, चैन की सांस। जैसे आपने कहा कि मैंने एक चैन की सांस ली, आई टुक साई ऑफ रिलीफ। Okay students, come on, newspaper reading is very important for us. One paragraph minimum must be added, not less than that.